Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about the Dirichlet formula for the volume integral, yes, for the triple integration to find the volume integral. And now we are going to discuss some more important applications of integration. और आज का जो topic है that is topic number 4, length of curve. This is called rectification. अगर किसी कर्व की लेंथ आपको निकालनी है रेक्टिफिकेशन, तो किस तरह से हम निकालेंगे आज हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे. एंड दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज आस्क्ड इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, IIT JEM, UPSC, IAS एंड मैनी थिंग एल्स. सो टॉपिक नंबर 4, लेंथ ऑफ कर्व क्या है इसको जरा समझो. द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ्स ऑफ आर्क ऑफ प्लेन कर्व्स whose equations are given in the Cartesian, parametric or polar forms is called rectification. तो ये जो नाम लिखे हैं कार्टेशियन, पैरामेट्रिक, पोलर, हम इनको इस टॉपिक में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहला टाइप इसमें आता है लेंथ ऑफ कार्टेशियन कर्व्स. कार्टेशियन कर्व्स आर दोज कर्व्स which are in the form of xy, like y is equal to function of x, यानी xy प्लेन वाले कर्व होंगे y is equal to f of x. Now लेंथ ऑफ कार्टेशियन कर्व्स क्या होगा. अबाउट x एक्सिस s इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखा है, इंटीग्रेशन लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx. मीन्स इफ यू आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, देन देयर विल बी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आल्सो. dy by dx is the derivative with respect to x. So x के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव है तो x के रिस्पेक्ट पर ही इंटीग्रेशन होगा. Similarly about y axis, then there will be the limits of y equal to c to y equal to d under the square root of 1 plus dx upon dy whole square. Can you see it? This is the derivative with respect to y. So we have to integrate it with respect to y as well. तो देखो dx upon dy whole square into dy. तो ये है हमारे सीधे फॉर्मूले. द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो dy. जिसके रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट पर करना है. तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज सी इट. शो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू log sec x between the points where x equal to 0 and x equal to pi by 3 is log of 2 plus root 3. सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि इसमें जो कर्व है वो xy वाला कर्व है. मीन्स दिस इज अ कार्टेशियन कर्व. सो गिवन कर्व इज कार्टेशियन कर्व, y is equal to log sec x. Then what to do? Find the derivative of y with respect to x. This is dy upon dx. The derivative of log is 1 upon sec. And the derivative of sec is sec into 10. Then sec cancel. After cancellation you will get 10x. ठीक है, क्या मिलेगा आपको? 10x मिल जाएगा. और लिमिट उसने अपने आप दी हुई है x equal to 0 to pi by 3. This is given in the question. Then length of the Cartesian curve s will be x equal to 0 to a. A means 0 to pi by 3, which is the limit of the x given in the question, under the square root 1 plus dy by dx whole square into dx. Then substitute the value of dy by dx, which is 10x here. So 1 plus 10 square x into dx, and 1 plus 10 square, it will become sec square. Out of the square root it will become sec, and the integration of sec will be log sec plus 10. Clear? The integration of sec x is log sec x plus 10x. अब इसकी लिमिट रखिए 0 to pi by 3. Then upper limit pi by 3 upper limit, देखो क्या होगा, sec pi by 3 plus 10 pi by 3 minus lower limit 0, sec 0 plus 10 0. Now can you see, sec pi by 3 2 होता है, 10 pi by 3 root 2 होता है, root 3 होता है सॉरी, और sec 0 1, 10 0 0. So finally log 1 it will make 0. So log 2 plus root 3 is the given answer. जो आपको सवाल में दिया हुआ है कि इसे प्रूफ करें log 2 plus root 3 ये वाला, तो ये इसका आंसर आ गया. तो इस तरह से आपको पैटर्न ऑफ द सॉल्यूशन समझना है. क्या है? इन केस ऑफ xy कर्व
इन केस ऑफ कार्टेशियन कर्व्स, जहां एक्स वाई वाले कर्व होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, अप्लाई द फॉर्मूला ये वाला, रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इंटू dx, dy by dx की वैल्यू यहां रखिए, आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, बाकी तो काम इसमें इंटीग्रेशन का है। सो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन कर्व्स की लेंथ निकालना। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, उससे चीजें और क्लियर होंगी। सी इट, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड। एक बात तो इस पर ध्यान दीजिए, दिस इज कॉल्ड होल लेंथ। तो मैंने आपको कैलकुलस में सिमेट्री समझाया था एक जगह। सिमेट्री में क्या है, इफ x has even power then curve will be symmetric about y axis, if y has even power then curve will be symmetric about x axis. So see it, ये जो कर्व आपके सामने लिखा है, अगर कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो y की इवन पावर होंगी, और y के अबाउट सिमेट्रिक है तो x की इवन पावर होंगी। अब देखिए आप इस कर्व को, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, तो 2/3 जो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आएगा ना, कंप्लीट। सो इट इज इवन पावर 2/3। सो x की भी इवन पावर, y की भी इवन पावर, दोनों की इवन पावर है, दैट्स व्हाई द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। और इसका कर्व का ग्राफ, एस्ट्रॉइड का ग्राफ ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं, जब x इक्वल टू 0 टू a वैल्यू लगाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेंथ निकल के आती है, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। समझ में है? तो अगर आपको होल लेंथ निकाली, कंप्लीट लेंथ, देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑक्टेंट एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 4। इफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस देन मल्टीप्लाई इट बाय 4। इफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वन एक्सिस, अगर ये एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो फिर आप मान लीजिए ये नीचे ना होता, तो फिर जितना है उतना इधर होता, 2 से मल्टीप्लाई करते। नाउ अब उसके बाद क्या करेंगे, ये x टू दी पावर 2/3, y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx फ्रॉम दिस कर्व। तो देखो डेरिवेटिव कैसे हुआ, पावर पहले पावर से एक कम 2/3 x टू द पावर -1/3, अगेन 2/3 y टू द पावर -1/3, एंड द डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx equal to a is constant, that's why its derivative is equal to 0। तो क्या होगा, dy by dx की वैल्यू, x इधर जाएगा, x टू द पावर -1/3, y टू द पावर -1/3, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देखो y को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव, और x नीचे आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देन s इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू a रूट 1 प्लस y टू द पावर 2/3 x टू द पावर 2/3 dx। ये किसकी वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ dy by dx हियर। नाउ टेक इट्स एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो s 2/3 y 2/3 होल अपॉन 2/3। What is this? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, this is equal to a to the power 2/3। So a to the power 2/3 अपॉन x to the power 2/3, और इसका रूट लेंगे तो होल पावर में ये 1/3 हो जाएगा, इसका रूट लेंगे तो बाहर आएगा ही। तो देखो a to the power 1/3 outside the integral and 1 upon x to the power 1/3, can we write it in this way, x to the power -1/3 dx। So the integration of x to the power -1/3, इसमें एक +1 करेंगे तो x to the power 2/3 upon 2/3। अब अपर लिमिट रखो, a to the power 2/3 -0, and finally you will get 6 a to the power 1/3, और यहाँ a की पावर 2/3, तो a की पावर 3/3 मतलब a, तो ये आ रहा है 6a। और आपने ध्यान दिया है एक चीज पर, ये मैंने स्टार्टिंग में यहाँ जो 4 जो लिखा है ये क्या है, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 होल लेंथ, है ना, पूरी कंप्लीट लेंथ के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, ये वाली चीज देखो इसको ध्यान से, ये वाला, ये 4 से, तो 4 से जो मल्टीप्लाई हुआ है इसका ध्यान रखेंगे, दिस इज ड्यू टू द सिमेट्री। सो अगर उसने कंप्लीट लेंथ, होल लेंथ आपसे पूछी है, देन चेक द सिमेट्री, इफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वन एक्सिस देन मल्टीप्लाई इट बाय 2, लाइक y² इक्वल टू 4ax, है ना, तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस केस में कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4। एक और एग्जांपल दिखाता हूं कार्टेशियन का, देखो ये अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इफ s be the length of arc of the catenary y is equal to c cos hyperbolic x by c, इस कर्व को कैटेनरी कहते हैं, ध्यान रखना कैलकुलस में कभी कभी बाय नेम से पूछ लिया जाता है।
द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, 4 ऑप्शन देंगे उनमें से एक ही होगा. From the vertex 0, c to the point xy, then show that s square equal to y square minus c square. इसका क्या मतलब है? The limit varies from 0 to c to xy. तो x की जो लिमिट है वो आपको देखनी है कि क्या हो रही है. 0 to x. Limit of x will be 0 to x. Then given curve y equal to c cos hyperbolic x by c. So dy by dx equal to c cos का differentiation sin x by c 1 by c हो जाएगा. So finally c से c cancel, then you will get dy by dx is equal to this one. क्या है? sin hyperbolic x by c. Then length of the arc or curve rectification s is equal to limit 0 to x root 1 plus dy by dx whole square into dx. आ रहा है समझ कुछ? ठीक. So s equal to 0 to x root 1 plus sin hyperbolic square x by c dx, and then 1 plus sin hyperbolic square will be cos hyperbolic square, और रूट से बाहर आएगा तो cos hyperbolic, and then the integration of cos hyperbolic is simply sin hyperbolic. cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन cos का माइनस sin, sin का डिफरेंशिएशन cos, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, है ना, cos का इंटीग्रेशन sin, वहां प्लस माइनस चलता है. लेकिन हाइपरबोलिक के केस में कोई प्लस माइनस नहीं होगा. यू हैव टू अप्लाई डायरेक्ट cos का sin, sin का cos हाइपरबोलिक में, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 by c, ये डिनोमिनेटर में. आफ्टर दैट c का रिवर्स किया हमने, तो c sin hyperbolic x by c, because for the upper limit x the function remains same, c sin hyperbolic, but for 0 sin hyperbolic 0 is nothing but 0. ओके. अब उसके बाद हमें यहां से s की वैल्यू मिल गई c sin hyperbolic x by c. This is the value of s. S means length of the curve. Now we have to prove s square equal to y square minus c square. तो हम कर क्या रहे हैं असल में? हम वैल्यू निकालते हैं y square minus s square की. ये सोचो, s को इधर भेज दिया हमने, y square minus s square equal to c square, ये दिखाएंगे फिर वहां से ही आ जाएगा. So y square minus s square हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं because we know the value of y and we know the value of s. So y square minus s square, y square is c cos hyperbolic and this is c sin hyperbolic. C square common, then cos hyperbolic square by c minus sin hyperbolic square by c, this is nothing but 1. ध्यान रखना, cos square थीटा प्लस sin square थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में निशान उल्टा होगा, रिवर्स. तो cos hyperbolic square c minus sin hyperbolic square c is equal to 1, and finally you will get y square minus s square equal to c square. तो अब आप इसको थोड़ा ठीक करके लिख दो, तो s square equal to y square plus c square, s square equal to y square minus c square, और यही आपको इसमें प्रूव करना है. So sometimes in this type of Cartesian curves you will get the length of the curve in such a way. इस तरह से बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला length of the arc s equal to 0 to x root 1 plus dy by dx whole square into dx. समझ गए होंगे आप? ठीक है. अब मैं आपको सेकेंड टाइप पे लेके चलता हूं. सेकेंड टाइप, लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व. So in case of parametric curve, x, y are not directly connected to each other, but they will be connected with the third parameter which is named as t or sometimes theta. मतलब x, y का सीधा कनेक्शन नहीं होगा, किसी तीसरे पैरामीटर से होगा, जैसे कि t है. x will be the function of t, x of t. y will be the function of t, y of t. Then what to do? Find the derivative of each x and y with respect to t. x और y का t के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव करके dx upon dt and dy upon dt निकालिए. That's it. Means simple as length of curve will be like this. 0 to t की वैल्यू a to b under the root dx upon dt whole square plus dy by dt whole square into dt. Means if you are differentiating with respect to t, then we have to integrate it with respect to t as well. Understood? Now एक दो सवाल देखो इसके ऊपर बेस्ड, जैसे इक्वेशन लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है. Find the whole length of the cycloid x equal to a theta plus sin theta and y equal to a 1 minus cos theta with the limit of theta minus pi less than equal to theta less than equal to pi. Means you have to take the limit of theta from
minus pi to pi. This is nothing but the value of limits. Now the concept is quite clear that x equal to a theta plus sine theta will be differentiated with respect to theta, and you will find dx upon d theta. Similarly, y will be differentiated with respect to theta, and you will find dy upon d theta. So say it, if we differentiate a into theta plus sine theta with respect to theta, so a theta का 1, cos का क्या हो, sin का क्या होगा, cos. तो अब आगे इसे ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्लस कॉस को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा, 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2. क्यों लिखा मैंने समझाऊंगा अभी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में आसान हो जाएगा. सिमिलरली y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा. If we differentiate 1 minus cos theta, then the derivative will become just sin theta, because the cos has the derivative minus sin theta, so minus minus will become plus. So dy upon d theta equal to 2a sin theta by 2 cos theta by 2. So we have the two derivative dx upon d theta, dy upon d theta, and the formula for the function of parametric curve for the length of curve. क्या है, s equal to रूट में dx upon d theta whole square, dy upon d theta whole square into d theta and minus pi to pi. This is the limit which is given in the question. Now substitute these two values dx upon d theta, ये वाली यहाँ पर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे सर तो क्या होगा, 4a स्क्वायर cos 4 थीटा बाई 2, देन 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा. अब क्या करें, 4a स्क्वायर और cos स्क्वायर कॉमन, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग टर्म्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 will become 1. So finally you have to integrate this cos theta by 2 only. So the derivative of cos theta by 2 is sin theta by 2, and this is 0 to pi 1 by 2. Now what to do, apply the upper limit sin pi by 2 minus sin 0. Sin pi by 2 is 1 and sin 0 equal to 0, so you will get 8a is the length of this parametric curve for the given limit minus pi to pi. तो इसकी लेंथ आ गई है 8a. तो समझ में आ गया होगा आपको ये कि किस तरह से हमने पैरामीट्रिक कर्व का क्या करना है, लेंथ ऑफ कर्व निकालना है. एक और एग्जांपल और फिर आप समझोगे. देखो ध्यान देना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है अभी जो हमने एस्टेरॉइड किया है उसकी. कौन सा एस्टेरॉइड, ये वाला, x इक्वल टू 2/3 y इक्वल टू 2/3, ये अभी किया ना हमने कार्टेशियन में टोटल लेंथ के लिए. उसी तरीके से ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाता है. Parametric form is the way in which x and y have the separate values which satisfies the equation x 2/3 plus y 2/3 equal to 2/3. If you put these two values, x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta in this curve, then you will get same thing. ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है. तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म से भी हम डायरेक्टली आंसर वही निकालेंगे जो अभी हमने कार्टेशियन में किया था ना. अभी देखो मैं आपको दिखा दूं, ये बोल गए आप इतनी जल्दी. दिस वन जहां पे मैंने सिमेट्री समझाई आपको, ये 6a इसका आंसर है. तो अभी इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में देखो कैसे होगा ये वाला. सो इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, सो यू विल गेट 3a cos स्क्वायर एंड sin, cos क्यूब का डेरिवेटिव, फिर sin क्यूब का तो 3a sin स्क्वायर एंड cos. देन अप्लाई दिस फॉर्मूला s इक्वल टू 0 to pi by 2 dx by dt whole square plus dy by dt whole square. Okay, now substitute these two values, 3a cos square sin, and it will be squared, इसका whole square है, so it will become 9a square cos 4 sin square. This is, and this is sin 3a sin square cos 4, इसका भी whole square, तो क्या होगा 9a square sin 4 cos, 9a square sin 4 cos square. Then take something common which is 9a square cos square sin square. Then remaining terms will be in the square root of cos square t plus sin square t, and finally it will become 1. अब देखो इसके बाद मैंने आपको एक ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ाया था, याद हो अगर आपको, ये लिमिट शुड बी 0 to pi by 2 sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equal to gamma m into gamma n whole upon 2 gamma m plus n. तो हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है. So without taking any trigonometric integral, you have to apply this original formula directly. याद है? So ये देखो 4 3 12. अच्छा 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ, फिर से आपको समझा दूं, because this is symmetric about both axes, है ना, याद है?
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है एस्टेरॉयड की। सो 12a आउटसाइड द इंटीग्रल एंड sin to the power 1t cos to the power 1t dt। तो इसकी पावर को कंपेयर करेंगे ना सर, 2m minus 1 equal to 1, 2n minus 1 equal to 1, so you will get m equal to 1, n equal to 1। m भी 1 होगा, n भी 1 होगा, तो इस फॉर्मूले में रखो गामा m 1 हो जाएगा, गामा n फिर से 1 एंड 2 गामा m प्लस n, 2 गामा m प्लस n, ये हो गया। गामा 1 1 होता है और गामा 2 ये फाइनली एक्सपेंड होगा 1 एंड 12a by 2 which is equal to 6a। तो देखो सेम आंसर आया, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व ऑफ एस्टेरॉयड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको पैरामीट्रिक के समझाए, सो दैट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर पैरामीट्रिक कर्व्स। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ पोलर कर्व। पोलर कर्व बहुत इजी है, इसको जरा समझ लो। अबाउट इनिशियल लाइन, इसको हम कहते हैं अबाउट इनिशियल लाइन। सीधी बात कहें तो थीटा के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन है और ये आर के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन है। जैसे अभी तक हम कार्टेशियन में एक एक्स के रिस्पेक्ट पर, एक वाई के रिस्पेक्ट पर, पैरामेट्रिक में टी के रिस्पेक्ट पर, वहां एक ही, और यहां दो है थीटा आर। तो एक कर्व इस फॉर्म में आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, इस फॉर्म में क्या कहते हैं हम उसको, पोलर कर्व कहते हैं। सो द लेंथ ऑफ कर्व मोस्टली वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। इसको ध्यान से समझ लो आप, ये काम आएगा ज्यादातर। हाँ जी, क्या है, देखो इसे, यस, एस इक्वल टू द लिमिट ऑफ थीटा फ्रॉम समथिंग अल्फा टू बीटा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इनटू डी थीटा। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक पोलर कर्व अबाउट इनिशियल लाइन, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट पर। और ये अबाउट पोल कहलाता है, इसे कहते हैं अबाउट पोल। ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसी से काम चल जाएगा, बट फॉर्मूला देख लो, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर प्लस 1 एंड डी आर। इससे हमारे सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर, पोलर का पहला और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द कर्व। पेरीमीटर मतलब उसके कर्व की लंबाई of the cardioid r equal to a 1 plus cos theta. This is called cardioid। देखो हार्ट के जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम है cardioid। राइट हैंडेड है, अगर यहाँ प्लस होगा तो राइट हैंडेड होगा, माइनस होता है तो इधर घूम जाता है, इधर, ये पूरा ऐसे रिवर्स हो जाएगा। अभी फिलहाल r इक्वल टू a 1 प्लस cos theta। इफ वी डिफरेंशिएट इट, या इससे पहले हम इसका ट्रिग्नोमेट्री लगा दें हाफ एंगल के लिए, तो 1 प्लस cos को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। Now differentiate it with respect to theta, then you will get 4a cos theta by 2, and the derivative of cos is minus sin theta by 2, so this is minus sin theta by 2, and the coefficient of theta which is 1 by 2, वो और आ गया, यहाँ पर ये लिखा है 1 by 2। So dr upon d theta equal to minus 2a cos theta by 2 sin theta by 2। We are not making it sin theta नहीं बना रहे, हम इसको हाफ एंगल में ही रखेंगे, क्योंकि बाद में भी अगर इसको सिंगल में रखेंगे तो 1 को कैंसिल करके एक्सपेंड वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेना, होल स्क्वायर नहीं खोलना पड़ेगा। Now length of the curve for the polar curve is r square plus dr by d theta का whole square under the root and d theta। Now substitute the value of r which is 2a cos square, put this value here, and dr by d theta this one, इसको यहाँ रखो। Now take common 4a square cos square, तो 4a square cos square कॉमन, फिर आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो भी कि 1 हो जाएगा। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का ये बेनिफिट होगा कि आप यहां से ये कुछ कॉमन निकाल पाएंगे। अगर आप सीधे सीधे रखेंगे, जैसे r की वैल्यू a 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ इसका होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे माइनस a साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर, तो फिर आपको वहां पर भी हाफ एंगल ही लगाना पड़ेगा दोबारा से, या फिर उसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, वो भी फिर डबल फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला कैंसिल करके करना ही पड़ेगा, 1 को कैंसिल। अभी फिलहाल ये 1 हो गया, एंड 2a cos theta by 2 means the integration of cos theta by 2 will be sin theta by 2, because the integration of cos is minus plus sin, differentiation minus sin होता है। So sin theta by 2 as it is, so 0 to pi, up 2 into 2 4a sin upper limit pi by 2, lower limit 0, sin pi by 2 is equal to 1 minus 0, and this is 4a। So s equal to 4a, this is the required length of the curve। तो इस तरह से आप इस कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, लेफ्ट कार्डियोइड, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान देना इस पर।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कार्डियड आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अभी मैंने आपको समझाया था अगर यहाँ प्लस है तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही राइट हैंडेड होगा, और अभी आपको देखने को यहां पर मिलेगा कि अगर माइनस है देन दिस इज लेफ्ट हैंडेड कार्डियड, and show that the arc of the upper half of the cardioid r equal to a1 minus cos theta is bisected by the line theta equal to 2 pi by 3, theta equal to 2 pi by 3 उससे bisected है। ये इतना कहना चाह रही हूं, क्या है? bisected by the line this, ठीक है। चलो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से, I think. So this is bisected by theta equal to 2 pi by 3. Now see it. पहला काम वही करेंगे, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, तो r equal to 2a sin square theta by 2. Now differentiate it with respect to theta, then sin square will be differentiated like 2 sin theta by 2 and then sin का cos और theta by 2 का 1 by 2. तो 4a sin theta by 2 cos theta by 2 1 by 2. Finally you will get ये 2 से 4 कैंसिल, 2a sin theta by 2 cos theta by 2. इसका sin थीटा मत बनाना क्योंकि बाद में भी कैंसिल करना पड़ेगा हाफ एंगल में। अब देखो हमें पहले तो आधे क्वेश्चन में पूरी लेंथ निकालनी है और फिर हम चाहते हैं कि इसके हाफ लेंथ अपर हाफ की वो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 से बाइसेक्टेड है, मतलब जितनी इधर लेंथ है वो इतनी इधर आगे होगी, यह है इसका मीनिंग। तो दो सवाल है इसमें, एक तो आपको कंप्लीट लेंथ बतानी है और दूसरा शो करना है कि जो अपर हाफ की लेंथ है 2 पाई बाई 3 से बाइसेक्टेड होगी अपर हाफ की, ये आधा इधर आधा इधर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अपर हाफ की लेंथ निकाल लेते हैं विच इज फ्रॉम थीटा इक्वल 0 टू पाई, और उसका डबल करेंगे तो टोटल लेंथ आएगी। फिर हम ये देखेंगे कि 0 टू 2 पाई बाई 3 की लेंथ कितनी है, और वो जो लेंथ होगी वो अपर हाफ का आधा हो जाएगी। तो ये देखते हैं इसके अंदर। सो द लेंथ ऑफ अपर हाफ वी आर टेकिंग द लिमिट 0 टू पाई and the formula is r square dr by d theta whole square into d theta. Then s equal to 0 to pi ये वाला अपर हाफ, और उसके बाद ये दोनों वैल्यू r स्क्वायर मींस 2a sin स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर sin 4 dr by d theta whole square दिस वैल्यू 2a sin theta by 2 cos theta by 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये आ गया d theta. Again take common something which is 4a square sin square, and after the square root it will become 2a sin theta by 2. Then remaining things will be sin square plus cos square which is equal to 1, and finally 2a sin theta by 2 means you have to integrate this sin and which is minus cos theta by 2. So 2a into 2 minus cos theta by 2 0 to pi, upper limit minus cos pi by 2 minus lower limit cos 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन cos pi by 2 कितना होता है 0, cos 0 1. So 4a is the value which is the length of upper half. इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हमें टोटल लेंथ अगर निकालनी है तो इसका डबल कर देंगे 8a हो जाएगा, 8a तो ये है। सो टोटल लेंथ देखो ये टोटल लेंथ कितनी हो रही है 2 into 4a because curve is symmetric about the initial line means x axis ऐसे। So total length 2 into 4a is equal to 8a. Now we have to show that the curve upper half is bisected by the line 0 to pi by 2 to theta equal to pi by 2, मतलब एक एंगल है 120 डिग्री का, और ये जो एंगल की लाइन है ये इसकी लेंथ को आधा आधा डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट। Then in equation number 1 we use the limit theta equal to 0 to 2 pi by 3. ये देखो कौन सी इक्वेशन 1, ये वाली। अगर हम इस वाली इक्वेशन में 0 to pi की जगह 0 to 2 pi by 3 रखेंगे तो हमें इसके अपर हाफ की लेंथ जो थीटा इक्वल टू 2 pi by 3 कट करेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। So directly in equation number 1 we are using the value 0 to 2 pi by 3. So 0 to 2 pi by 3 to a sin theta by 2, and then sin theta by 2 has the integration minus cos theta by 2 and the coefficient 1 by 2 will be in the denominator, right? This one 1 by 2. So cos का इंटीग्रेशन देखो minus cos 2 pi by 3 by 2, तो 2 से 2 कैंसिल pi by 3, फिर माइनस माइनस प्लस cos 0 is equal to 1, और ये cos pi by 3 होता है 1 by 2. After simplification you will get 4a into 1 by 2, this is 2a. So what is 2a? 2a is the half
of 4a and 4a is the length of upper half. देखो ना, यहां देखो, this is the length of upper half, this is 4a, the length of upper half, and now you can see this is 2a which is half of the length of upper half. तो इसका मतलब क्या हुआ, 4a का आधा आधा हो गया, 2a एक तरफ 2a एक तरफ, मींस आपने यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाली है तो मिला आपको 2a और टोटल है 4a, 2a इतना हो गया, तो क्या आगे वाला भी 2a नहीं बचेगा? इट मींस थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 विल गिव यू द आंसर विच इज बाइसेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ अपर हाफ. ऊपर वाली जो अपर हाफ की लेंथ है वो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 से बाइसेक्ट हो जाती है. तो इस तरह से हम इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब मैं एक छोटा सा टॉपिक इसी से कनेक्टेड पढ़ाता हूं, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन. Intrinsic equation is the equation which is connected in S and Xi. S और Xi से कनेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन. एक बार डेफिनेशन आपके लिए, द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द कर्व S and the tangent angle Xi is called intrinsic angle. Tangent angle Xi is called intrinsic angle. ठीक है. मेथड क्या है? बहुत सिंपल है. पहला पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व S with the general limits. जनरल लिमिट्स मतलब अगर कार्टेशियन कर्व है तो 0 to x, पोलर कर्व है तो 0 to थीटा, इस तरह से, है ना. फाइंड द टेंजेंट, टेंजेंट निकालनी है आपको बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्मूला एंड वी नो इट वेरी वेल फ्रॉम द क्लास 9th 10th 11th. जो ग्रेडियंट होता था dy by dx इक्वल टू tan थीटा, तो हमें वहां पर tan xi करना है and then establish a relation between s and xi, that will be your intrinsic equation. एक बहुत ही सिंपल सा एक ग्राफ से आप समझ लो, ये बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है. इसमें क्या होता है कि कोई कर्व आपको उसकी लेंथ निकालनी है और इस कर्व की लेंथ, हाँ जी, कैसे, s की वैल्यू क्या होती है मैं आपको समझाता हूं. देखो, अगर ये कोई कर्व है y is equal to something, this is any curve, y is equal to f of x, ये कर्व है. ओके, देन व्हाट टू डू. अगर किसी पॉइंट P, जनरल पॉइंट P पर एक टेंजेंट हमने खींची, दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट, तो इस P पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है ये वाली x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से, दिस इज x एक्सिस, तो इस एंगल को xi कहते हैं, टेंजेंशियल एंगल. s क्या होती है? s ये वाली लेंथ है, ये वाली, दिस लेंथ इज कॉल्ड s. अगर हमें कोई दूसरा पॉइंट Q मानना है तो उस Q पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे और फिर ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये S हो जाएगी PQ के बीच का. तो S ये लेंथ ऑफ कर्व और xi ये टेंजेंशियल एंगल, इन दोनों के बीच एक इक्वेशन अगर हम एस्टैब्लिश कर दें, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन. बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये सवाल लिखा है, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला 3ay स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब is 9s equal to 4a sec cube x sec cube xi into sec cube xi minus 1 ब्रैकेट में. तो गिवन कर्व एक कार्टेशियन कर्व है 3ay square equal to 2x cube, then we will find the value of dy by dx, but before that we will find the value of y. So y will be root में 2 by 3a into x to the power 3 by 2, इसका रूट ले लिया हमने इसका. अब डिफरेंशिएशन, root 2 by 3 as it is, the derivative of x to the power 3 by 2 will become 3 by 2 x to the power 1 by 2. एंड उसके आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3 by 2 2 by 3 कैंसिल, तो ये 3 by 2 रूट में आ जाएगा, तो 3/2a और x की पावर हाफ भी ऐसा ही है, तो 3x/2a कंप्लीट स्क्वायर रूट में लिख दिया. ठीक है, लिख सकते हैं इसे. नाउ लेंथ ऑफ द कार्टेशियन कर्व इज गिवन लाइक दिस, लिमिट 0 to x root 1 plus dy by dx whole square into dx. So what is the value of dy by dx? This one, root 3x/2a. अब यहां रखो, जब हम इसका रूट रखेंगे ना सर, देखो ये वाली क्वांटिटी का जब आप इसका रूट रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कि ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर करने से, है ना. अब इसका होल पावर 1 plus 3x/2a होल पावर रूट लगी है, मतलब 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट का, क्योंकि लीनियर फंक्शन है 1 plus 3x/2a, तो ऐसा है जैसे t की पावर 1/2 हो, तो t to the power 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2/3/2 ना, पावर में एक जोड़ देते हैं. So similar to that 1 plus 3x/2a, ये वाला 1 plus 3x/2a
इसके होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो घुमा के हमने यहां पर लिख दिया 2/3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला। एंड लिमिट, जनरल लिमिट 0 to x, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 3/2a, डिनोमिनेटर में आएगा तो रिवर्स हो गया 2a/3, ठीक है। अपर लिमिट x तो 1 + 3x/2a एज इट इज, माइनस लोअर लिमिट 0 0, तो देखो 0 रखेंगे तो यहां 0 हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट 1 to the power 3/2 which is nothing but 1 only. So s equal to 4a/9, 1 + 3x/2a whole power 3/2 minus 1. ये है आपका s, लेंथ ऑफ कर्व। देन व्हाट टू डू, dy/dx is equal to √3x/2a। तो अब आप क्या कर सकते हैं, dy/dx की वैल्यू √3/2a जो आपके सामने लिखी है, क्या ये टेंस आई के बराबर रख सकते हैं आप इसको, क्योंकि यही तो मेथड का सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ऑफ द मेथड। देखो ये वाला क्या करना है, फाइंड द टेंजेंट एंगल बाय dy/dx इक्वल टू टेंस आई, देन सब्स्टिट्यूट dy/dx इज इक्वल टू टेंस आई। मतलब हम यहां पर dy/dx इक्वल टू टेंस आई करेंगे, मींस √3x/2a मे बी रिटन इक्वल टू टेंस आई। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, कौन सी, ये वाली जो हमने लेंथ ऑफ कर्व निकाली, इसमें 3x/2a, रूट में 3x/2a, उसको आप टेंस आई रख सकते हैं यहां पर, रूट वाले को। तो अगर विदाउट रूट होगा तो मतलब उसका स्क्वायर होगा ना tan स्क्वायर, एंड 1 + tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, होल पावर 3/2। अब यहाँ 1/2 कैंसिल, ये 2 से 1/2, तो sec क्यूब आई -1। तो s क्या होगा, या 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या कर सकते हैं आप, दिस मे बी रिटन लाइक 9s इज इक्वल टू 4a sec क्यूब आई -1। तो यही तो आपको दिखाना है, 9s इक्वल टू 4a sec क्यूब आई -1। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ कर्व s एंड द एंगल ऑफ टेंजेंसी, लेंथ ऑफ कर्व s एंड द एंगल ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। किस किस के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ टेंजेंसी का। तो सर इस तरह से आपको ये इंट्रिंसिक इक्वेशन मिल जाएगी। बात समझ में आई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और दिखाऊं, देखो ये जल्दी से देख लो, बहुत छोटा सा है। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x/c। सो y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x/c। फाइंड द डेरिवेटिव, देन cos का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x/c एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x 1/a एज इट इज, a से a कैंसिल, तो sin हाइपरबोलिक x/c मतलब x/a। Length of the Cartesian curve is given like 0 to x √1 + dy/dx whole square into dx. Then substitute this value dy/dx sin hyperbolic x/a in this formula. So 1 + sin hyperbolic square x/a, this is equal to cos hyperbolic x/a, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin, सिंपल sin hyperbolic। अब फिर से क्या करना है, dy/dx को टेंस आई, मतलब sin hyperbolic x/a को टेंस आई रख सकते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि यहाँ sin hyperbolic x/a, this one sin hyperbolic x/a, उसको क्या रखना है, tan, तो s इक्वल टू a tan i, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपके ये असाइनमेंट आपके लिए बनाया है, आप इसमें देख सकते हैं। फाइंड द पैरामीट्रिक पेरीमीटर ऑफ द कर्व, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ कर्व, ये कार्टेशियन है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व दिस वन, लिमिट दी है x इक्वल टू 1 से 2, ठीक है। ऐसे ये वाला, ये पैरामीट्रिक हो गया, ये भी पैरामीट्रिक है। लेंथ ऑफ द लूप, ये पोलर हो गया, है ना। आगे ये सवाल लिखा देखो ऐसे, r इक्वल टू 1 + cos थीटा इज बाइसेक्टेड थीटा इक्वल टू π/3, जैसे अभी हमने 2π/3 वाला किया, ठीक वैसे ही होगा ये वाला। शो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड, इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है, s इक्वल टू 4a sin i आना चाहिए आपको। यहाँ dy/dx/d थीटा dy/d थीटा निकालना है, और dy/dx के लिए dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा करना है, और उसको tan i के बराबर रख देना, वहां से अपने आप आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ हम आपको इस टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया लिंक है, जो कोर्स से रिलेटेड आप कोई भी इंक्वायरी आप चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर यूपीएससी आईएएस के लिए, गेट के लिए या आईआईटी जैम के लिए आपको पढ़ना है तो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।